Hello, awesome crew. Welcome or welcome back to my YouTube channel. If you don't know me, hi, I'm Arya and I'm a JEE aspirant, just sharing and documenting my journey on this channel. So there will be a lot of growth learnings that will be happening over here. So if this clicks with you, mind watching this video. So guys, just going to share some study updates. Actually, today I had my college, right? So I have to go to school 3 days a week, practicals and everything. So it's not completely dummy. So I have to attend it. And today was the day when I went to school, and after I came, I just slept, and now I woke up. Still, there is somewhat 1.5 hour time for my online lectures. So before that, I want to study. So I'm just with all my physics, chemistry books. I think I'll start with chemistry because actually biomolecules has been started. Biomolecules, and it's quite a long chapter. And there are so many things that, like, I made the notes, but there are so many things that I need to just remember and everything. So if I don't revise it regularly, I may forget. So I will just revise this part first. Guys, look at this now. Look how pretty this looks. Quite pretty. Like it's a solar system lamp kind of a thing. It looks pretty at night when all the lights are off. Okay, back to our topic. So basically this is biomolecules that I'll be studying. Actually this is not from the JEE notes thing. Actually मैंने अपनी जो बोर्ड का टेक्स्ट बुक है उसके अकॉर्डिंग बनाया, लाइक ऑल द टॉपिक्स एंड द सीक्वेंस, ऑल ऑफ इट इज फ्रॉम माई बोर्ड टेक्स्ट बुक. बिकॉज अभी मेरी यूनिट टेस्ट आने वाली है जुलाई एंड या फिर अगस्त के स्टार्ट में इन माई स्कूल. सो आई हैव टू गिव इट. तो उसके लिए मुझे अभी से प्रिपेयर करना है. फ्यू चैप्टर्स आर कमिंग. सो अभी से किया तो ही वो होने वाला है कवर. बिकॉज ऑर्गेनिक मोस्टली आ रहा है, एंड ये वाला चैप्टर तो ठीक है, बट हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स आ रहा है, एंड देन अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर एंड ऑल. तो ये सारे चैप्टर्स आर कमिंग फॉर माई स्कूल एग्जाम. इट्स इन जुलाई एंड और अगस्त स्टार्ट. आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट, बट yeah, some maths and everything syllabus is coming. And guys, you might have observed I have just changed my study tables, this background. Actually here were motivational quotes and everything, but actually I wanted these formulas to stick here because I actually read randomly. If I sit on my study table, I just tend to go through them, and this I can read anything. I make sure कि at least daily I read these formulas because they are used so many times, and like I know the formulas, but क्या होता है कि कभी साइन में confusion, and sometimes I get confused with the signs, and कभी साइन में क्या है कॉस में क्या है. तो इसीलिए मैंने इसको सामने रखा है ताकि I have the practice of reading it daily. That's why I've just changed it. And guys, I also wanted to share one thing कि I talked to some of my friends, and they were like they just are studying, like they previously have studied only for I can say boards, या फिर उन्होंने सिर्फ कोई भी स्टेट एंट्रेंस की एग्जाम दी है, एंड देन ऑल्सो दे हैव एंडेड अप स्कोरिंग बोर्ड इन जेई. क्योंकि when they come in 12th standard it becomes hard to manage both of them. But if you are कोई CBSE बोर्ड से है तो उनको easy होगा because they study NCERT and it's quite easy for them as NCERT syllabus is followed in JEE as well. तो टेक्स्ट बुक completely aligned है उनके NCERT की JEE से. So maybe it is quite easier for them than the state board students because we have to study our textbook differently. like अलग से state board की टेक्स्ट बुक जो होती है वो पढ़नी पड़ती है एग्जाम के लिए. 12th में तो बोर्ड्स है, so we cannot risk studying it at last moment. तो उसे अभी से पढ़ना होता है. तो when I study I get to know कि बहुत सारा टाइम कंज्यूम होता है एक चैप्टर पढ़ने में या समझने में. ये जो नोट्स मैंने लिखे हैं ये सारे बायोमोलिक्यूल्स के हैं मेरे टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग. तो ये सारे लिखने में एंड देन ये सारा कुछ पढ़ने में मुझे टाइम गया. तो बेसिकली जेई का अलग से करना है, ये अलग से करना है. इट इज़ कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ टाइम. एंड अगर मैं दोनों एक साथ करने जा रही हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा है मेरा. एंड देयर आर ओनली 6 months लेफ्ट फॉर जेई, एंड ऑफकोर्स जेई का जान अटैम्प्ट होगा, उसके बाद फेब में डायरेक्टली बोर्ड्स होंगे. तो आई डोंट गेट मच टाइम टू स्टडी फॉर बोर्ड्स. एंड जो मेरी स्टेट की एंट्रेंस एग्जाम होगी वो भी मेरे टेक्स्ट बुक्स से अलाइन होगी, कंप्लीटली अलाइन विद माई स्टेट बोर्ड वाले टेक्स्ट बुक. सो आई फील कि व्हेन आई स्टडी दीज चैप्टर्स ना, I try to solve those questions from the state entrance exam type of questions. I have reference books, so मैं उसमें से try करती हूँ कि when biomolecules I have read, made notes and studied, so I go to that reference book in which वो state entrance exam के जो questions हैं I just try solving them, and वो हो जाते हैं अच्छे से because मैंने text book से ये अच्छे notes बनाए हैं. उसके बाद I also have to read text book. ये तो बस notes है, मैंने एक video lecture देखा था उसके according मैंने बनाया, but also मुझे पढ़नी है book भी. तो अगर मैं जेई की क्लासेस ले रही हूँ उसके साथ ये सब कर रही हूँ तो इट इज़ कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ माई टाइम. एंड ऑल्सो जेई का सिलेबस ऑफकोर्स अलाइन होता है स्टेट बोर्ड से, लाइक टॉपिक सेम होता है बट कंप्लीटली सेम नहीं होते, एंड कंप्लीटली लेवल भी सेम नहीं होता, मैच नहीं होता. तो एनसीईआरटी पढ़नी पड़ती है. फिर अलग से लाइक 11th में तो यही किया मैंने कि एनसीईआरटी भी पढ़ी है. देन 11th में कैसा था कि कॉलेज में जो एग्जाम हुए थे मेरे स्कूल में वो एक एट द एंड मुझे देने थे. सो उसका इतना बर्डन नहीं था होल ईयर की मुझे यूनिट टेस्ट सेमेस्टर ये सब देने हैं. तो डायरेक्टली एंड वाले एग्जाम देने थे बिकॉज इट वॉज नॉट कंप्लीटली डमी, बट प्रैक्टिकल कुछ आना था, प्रैक्टिकल एग्जाम्स देने थे. बट जो फाइनल रिटर्न पेपर था वो लास्ट वाला देना था. बट अभी 12th में तो द स्कूल हैज सेड दैट वी हैव टू गिव ऑल द एग्जाम दैट कम, यूटी हो, प्रैक्टिस टेस्ट हो, सेमेस्टर हो, प्रीलिम्स हो, जो भी आ रहे एग्जाम्स 12th में वो सारे के सारे देने ही हैं. अभी जो यूनिट टेस्ट होने वाला है अभी उसके पहले मेरी प्रैक्टिकल एग्जाम होने वाली है जिसमें वो लोग प्रैक्टिस लेने वाले जितने भी प्रैक्टिकल्स हुए हैं दैट वी हैव टू परफॉर्म एंड गिव प्रैक्टिकल एग्जाम्स एज वी गिव इन बोर्ड्स. तो बेसिकली इट्स लाइक आवर स्कूल इज़ वेरी मच इन कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स 12th बिकॉज वो बहुत सीरियस है कि 12th में अच्छी परसेंटेज आने चाहिए हर बच्चे को. तो एक ही एग्जाम देना ही बेनिफिशियल बिकॉज उनको भी पता है हम जेई का पढ़ते हैं एंड और. तो दिस हैंड्स ऑन दिस रिटर्न प्रैक्टिस गोज. सो दैट द नाइस वन कि हमें सारे एग्जाम्स देने हैं. बट व्हेन आई सी कि जो मेरे पास रेफरेंस बुक है जिससे मैं ये कर रही हूँ उसमें जेई मीन्स के भी PYQs है कि स्टडिंग दिस ऑल्सो लाइक मेरी टेक्स्ट बुक या आपकी जो भी बोर्ड टेक्स्ट बुक, आई होपफुली थिंक
थ्योरी पार्ट सेम होगा, थोड़ा बहुत एडवांस होगा जेई मीन्स में, एक्स्ट्रा थ्योरी पार्ट होगा, आई थिंक डिफरेंटली वो पढ़ सकते हैं. तो आई एम नॉट सेइंग कि आई एम लीविंग जेई और एनीथिंग लाइक दैट, बट एंड आई एम नॉट एडवाइजिंग इज वेल कि आप जेई छोड़ दो और यही करो. इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन एवरीवन्स चॉइस, बट सीइंग दैट 12th में इट्स होल योर बोर्ड वाली टेक्स्ट बुक, जिस भी बोर्ड में आप हो, सीबीएसई हो तो इट्स वेल एंड गुड, आपको एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी के लाइन में जेई सिलेबस इज देयर, सो इट्स गुड. बट आई थिंक अगर आप दूसरे बोर्ड से आपको अभी से पढ़ना पड़ेगा बोर्ड्स के लिए, एंड इट्स क्रूशियल दैट यू गो थ्रू योर टेक्स्ट बुक thoroughly. एंड अगर आपकी जो भी स्टेट एंट्रेंस जैसे एमएसटी सीटी हो गई या फिर कर्नाटका की केसीटी हो गई, जैसे अलग अलग स्टेट्स के जो भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए उनके बोर्ड वाले टेक्स्ट बुक फॉलो होती है, ना कि एनसीईआरटी. लाइक महाराष्ट्र बोर्ड की टेक्स्ट बुक फॉर महाराष्ट्र एमएसटी सीटी. एंड ऑल्सो गाइस मैंने कुछ इंटरव्यूज़ देखे थे, लाइक टॉपर्स इंटरव्यू लाइक ऑल एस्पिरेंट्स डू, तो मैंने देखे थे और उसमें दे सेड दैट लाइक फ्यू इंटरव्यूज आई वॉच, एंड उनमें से कई लोग ऐसे थे जिन्होंने बस अपने बोर्ड के लिए या फिर स्टेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ा था, एंड देन ऑल्सो दे एंडेड अप क्लियरिंग जेई. अगर ऐसे भी कोई मैंने वीडियोस देखे हैं या फिर लोगों के चैनल्स देखे जिसमें दे हैव ओनली स्टडी 2 years फॉर जेई एंड दे एंडेड अप क्लियरिंग नथिंग, लाइक नॉट जेई, नॉट स्टेट लेवल एग्जाम्स, कुछ भी नहीं, बिकॉज जेई पे पूरा फोकस होता है. उसके बाद स्टेट एंट्रेंस एग्जाम जेई के बाद ही होते हैं. आप फोकसिंग ऑन द स्टेट एग्जाम्स बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज पैटर्न डायरेक्टली सेम नहीं होता, अलग होता है, बुक अलग रेफर करनी पड़ती है, एवरीथिंग. तो आई हैव ऑब्जर्व्ड एंड मैंने सोचा है कि मैं भी मेरे बुक पे ज़्यादा फोकस करने वाली हूँ अभी से. इट्स जुलाई राइट नाउ एंड देयर इज अ लॉन्ग टाइम फॉर जेई, लाइक 6 months आर देयर फॉर जेई मीन्स. बट हाँ, मैं जेई का भी पढ़ने वाली साइड बाई साइड, एंड उसके साथ जेई के PYQs एंड एवरीथिंग. बट या मेरा फोकस में ज़्यादा तो मेरी बोर्ड्स की बुक्स एंड एवरीथिंग होने वाले हैं, बिकॉज उससे भी मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे से जेई मीन्स के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे थे PYQs इफ़ आई स्टडीड माई थ्योरी फ्रॉम माई टेक्स्ट बुक एंड माई होल स्टेट बोर्ड वाला टेक्स्ट बुक. तो आई होपफुली थिंक आई डू दैट राइट नाउ, बिकॉज अभी मुझे वही सही लग रहा है. एंड डू लेट मी नो गाइज कि आप क्या सोच रहे हो, कौन से बोर्ड से हो आप, कि आपको भी ऐसा लगता है कि आपका टेक्स्ट बुक जो है वो इक्वली अलाइन नहीं है जेई के साथ. आई नो पीपल विल थिंक कि सिलेबस तो सेम है, फिर ऐसे क्यों. आई थिंक सिलेबस इज सेम, बट मेरे लाइक व्हाट आई थिंक फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू इज I am getting difficulties like going on both, like I'm feeling I'm keeping my feet on both the boards, like दो नाव पे पैर रख के मैं जा रही हूँ. एंड ऐसा नहीं करना चाहिए, एक पे 100% फोकस होना चाहिए मेरा. लेकिन अगर मैं जेई करती रही एंड फिर मेरा बोर्ड्स में भी इफेक्ट होगा उसका, एंड मे बी मेरी स्टेट एग्जाम जो है उसमें भी मैं अच्छा स्कोर कर सकती थी, अच्छे कॉलेजेस ले सकती थी, बट मुझे रिग्रेट होगा फिर कि मैंने क्यों नहीं किया. तो इसलिए आई फोकस ऑन बोथ ऑफ देम. तो या दैट्स इट गाइस, दैट्स एन अपडेट. एंड इतने दूर से वीडियोज़ नहीं आ रहे थे, तो आई होप यू गॉट सम इनसाइट्स. एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे जरूर कमेंट्स में बताना. ये ऐसा इंसाइट था, ऐसा इट्स नॉट अ वीडियो टू टेल यू टू चूज जेई, चूज बोर्ड्स, ऐसा कुछ नहीं. जस्ट मी टेलिंग दैट आई एम पुटिंग माई फोकस ऑन माई बोर्ड्स एज वेल. लाइक बोर्ड्स पे फोकस है बट ज़्यादा फोकस होगा बिकॉज मुझे रियलाइज़ हुआ कि हो रहा है सब कुछ बोर्ड्स पे फोकस करने से भी. आई एम नॉट लीविंग जेई, आई एम गोइंग टू गिव जेई, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जेई एज वेल. बट या जस्ट इनसाइट्स व्हाट आई फेल्ट. सो मैं जेई की क्लासेस अटेंड कर रही हूँ अभी फिलहाल, एंड दिस इज़ व्हाट आई एम मेकिंग नोट्स एंड एवरीथिंग बिकॉज एग्जाम को आ रहा है अभी ये. तो इसके भी मैं लेक्चर्स अटेंड कर रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ. सो होपफुली आई टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो कि कैसे क्या चल रहा है. एंड डू लेट मी नो आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, कौन से एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. स्टे मोटिवेटेड गाइस, स्टे पॉजिटिव, होपफुली वी विल एंड अप इन गुड कॉलेजेस. सो स्टे मोटिवेटेड एंड नेवर गिव अप, दैट्स ऑल. स्टे कंसिस्टेंट. आप कोई भी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, स्टे कंसिस्टेंट, दैट्स व्हाट आई हैव टू से. इट्स बीन अ 12-minute long video and I hope you got some insights out of it. And also I have my few JEE lectures to attend as well, and अभी मुझे बायोमोलिक्यूल्स पर रिवाइज करना है बिफोर माई क्लास स्टार्ट. सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू. एंड मुझे जेई के लेक्चर्स भी देखने हैं बिकॉज बीच में मेरे एग्जाम्स जब चल रहे थे तभी मेरे काफ़ी कुछ बीच में मिस हुआ था, तो वो भी मुझे कवर करना है. एंड इनफैक्ट अभी मैथ्स का मैंने एक चैप्टर स्टार्ट किया है मेरे बोर्ड्स वाला, जो मेरे स्कूल वाले एग्जाम में आ रहा है, तो उसकी भी एक एक्सरसाइज मेरी पेंडिंग है, तो वो भी मुझे कंप्लीट करनी है. तो बिफोर माई लेक्चर स्टार्ट्स I have 1 hour time, so I'll do that and I'll see you in the next one. That's a wrap guys. Stay curious, stay unstoppable. I'll see you in the next one.